Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom. Let us discuss about DU LLM 2024. Now, first and foremost, there is no exam called as DU LLM anymore. Since last year, the admissions to DU, both LLB and LLM, have been conducted through an exam called as CUET PG. Now, this exam is being conducted by NTA on the behest of UGC. To understand this process, if you're waiting for an exam called DU LLM, it does not exist. DU LLB and LLM, they passed away in 2022. In 2022, on the 19th of October, I believe DU LLB took place. Somewhere around that time, LLM भी हुआ होगा. उसके बाद से DU के नाम का पेपर नहीं है. So now this is a two-stage admission process. You have to take an exam under CUET PG, and the paper code for that since last year is COQP 14. So what do you have to do to understand COQP 14? So this is the question paper code. So CUET PG has a lot many codes under which LLB के लिए COQP 11 is being used. But since it is not an LLB का paper, it is a general paper. So COQP 11 many students fill out because it's a general aptitude paper to gain admission into LLB. तो आपने जो DU LLB दिया होगा एक ज़माने में, if you belong to the faculty of law, वो पेपर अब नहीं आता है. पेपर DU LLM का भी अब COQP 14 है. तो अब इस पेपर की जानकारी प्राप्त करने के लिए let us go and ask the CUET PG guys जिनके फॉर्म अभी खुल चुके हैं. This exam will be conducted between the 11th of March to 28th of March, and then DU or the faculty of law will take admissions based on this score sometime in June-July वाला time frame. So it's a two-stage admission process. Exam NTA/UGC conduct कराएगा, admission बाद में DU, BHU या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी LLM बेसिकली ऑप्ट इन कर रही होगी वो एडमिशन दिलाएगी. इस टाइम पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो BHU वहाँ भी पॉपअप नहीं हो रही. I do not know what the technical issue is. However, I believe that later on when BHU opens its individual portal, because each university has to open an individual portal, जिसके अंदर आप इसका स्कोर सबमिट कराएंगे और उसके हिसाब से रैंक लिस्ट पूछी जाएगी. I believe BHU तब इस स्कोर को एक्सेप्ट कर लेगा. So you need not worry about BHU as well. लेकिन ये पेपर आपने देना है if you're trying to pursue an LLM right now from any of the central universities. So what you have to do is you have to go to Google, you have to type in CUET PG. अब CUET PG में दो वेबसाइट्स हैं. एक है CUET.nta.nic.in, ये पिछले सालों की वेबसाइट है, इसको इग्नोर कर देना है. pgcut.samarth.ac.in. I don't think that the camera will be able to capture it very accurately. I hope it does, but यहाँ पे लिखा है pgcut.samarth.ac.in, तो .samarth.ac.in वाली वेबसाइट रेफर करनी है. We click here. Alright, so the forms are open as of right now. The last date as of right now is 24th January, if I am not mistaken. Let us check the important dates. 26th December, last date for online submission of application form is 24th January, and then fee wali jo date hai, that is the 25th of January. Once you have seen this, you can go to the syllabus portion of it. Syllabus portion के अंदर ये वाले सारे के सारे आपके काम इन्होंने सारे दे रखे हैं, अलग अलग कोड्स हैं. अगर हम देखते हैं सो जनरल LLB एटसेट्रा पिछले साल तो बिल्कुल आपके DU LLB का पेपर इन्होंने बिल्कुल ही मैथ्स लॉजिकल का बना दिया था. इस साल फिर भी एक टॉपिक लीगल अवेयरनेस का इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है. हाउएवर वी नीड टू गो हियर एंड वी हैव टू फाइंड आउट फॉर आपका LLM एटसेट्रा. ये आ गया. ऑलराइट, LLM एटसेट्रा को खोल लेते हैं. सो द क्वेश्चन पेपर कोड, जब ये आपसे फॉर्म जब फिल आउट करेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा. 15 पेज है, 15 पेज का सिलेबस है. सिलेबस फॉर लॉ LLM COQP 14. ऑलराइट, क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन. ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज. अब पिछले साल मजे की बात क्या है, बिल्कुल जस्ट अभी इनफैक्ट इन्होंने जब ये पेपर कंडक्ट कराया था फॉर 2023, LLM में भी ये 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछते थे. सच बात है. मैं अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिएगा, मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल है TLOI का. वहाँ पे मैं जैसे ही ये वीडियो एडिट करके डालूंगा, मैं वहाँ पे एक PDF फाइल भेज दूंगा पिछले साल के पेपर की, ताकि आपको आसानी से. उसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के. ईश्वर की कृपा से इस साल इन्होंने उड़ा दिए. उसमें वो स्फेयर की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम LLM के पेपर में पूछ रहा था. पता नहीं कौन सी गांजा अफीम खा के ये लोग क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं, बट दैट्स व्हाट इट इज, दैट इट वाज. नाउ दैट हैज बीन, इट सीम्स लाइक इट हैज बीन एलिमिनेटेड. You will get 75 questions and you have to attempt those questions in 105 minutes.
राइट, नॉट इवन कंप्लीट 2 hours, 1 hour 45 minutes, 15 मिनट इन्होंने काट दिए, 25 क्वेश्चन उड़ा दिए, और आपका जो स्टैंडर्ड जो 2 घंटे का जो एग्जाम होता था, आई बिलीव उसमें से हाँ 15 मिनट इन्होंने कम कर दिए. ऑलराइट, इफ यू सी द सिलेबस, सो इट स्टार्ट्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स. आपको लगेगा यार ये इसने सभी कुछ पूछ लिया, एसआरए वैसआरए, रिकवरी ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज, सब कुछ. अभी रुकेगा थोड़ा सा, अभी डरने घबराने की उतनी जरूरत नहीं है. विल जस्ट हाउ टू फील, जस्ट फिगर आउट एज टू हाउ टू डू दिस. कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने सारी उठा के दे दी, टॉट्स इन्होंने सारा उठा के, फैमिली लॉ, हिंदी लॉ, क्रिमिनल लॉ. बेसिकली इन्होंने क्या करा है, ये किसी लॉ के कॉलेज की वेबसाइट पे गए हैं और इन्होंने वहां से सारा सिलेबस कट कॉपी पेस्ट कर दिया. सी दिस, मतलब ये जुडिशरी प्री में भी शायद इतना नहीं पूछते होंगे. इन्होंने यूपीएससी लॉ में मेरे हिसाब से इन्होंने 3 या 5 साल की एलएलबी सारी उठा के पटक दी है. ज्यूरिस्प्रूडेंस, अच्छा अब ये क्लिनिकल कोर्स 1, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस. सी बैंकिंग लॉ. इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू कवर दिस सिलेबस आउट. इट इज एब्सोल्युटली ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू कवर दिस सिलेबस आउट. मतलब डू नॉट इवन, मतलब ये पीडीएफ जरूर सेव कर देना, मैं दोनों भेज देता हूँ टेलीग्राम के चैनल पे, और सेव करके अपने एंड पे रख लीजिएगा. बट दिस इज लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, भाई साहब जो भी जो पूछ सकता है ना, सीपीसी पूछ लेगा, सीपीसी, आईपीआर, देन यू हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, यू डू एविडेंस, एंड देन वेल देयर इज टैक्सेशन. मतलब क्या नहीं है इसके अंदर. तो इन्होंने क्या है, इन्होंने बेसिकली नेट सिलेबस सीख के आपके पास इनडायरेक्टली कह रहा है, एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो वो कह रहा है कि कुछ भी पूछ लूंगा, जो पिछले 3 साल की एलएलबी में करा है उसमें से कुछ भी पूछ लूंगा, कि कुछ रह ना जाए कि कल को आप ऑब्जेक्ट ना कर दें कि ये तो आपने सिलेबस में दिया नहीं था, इसने सभी कुछ पूछ लिया है आपसे. अब आप कहेंगे भाई साहब इसकी तैयारी कैसे होगी? हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है. सबसे पहला जो इसका जो इस प्राणी का जो इलाज है, या इस बीमारी का जो इलाज है, जो इस प्राणी को हो रखी है, इस पेपर को, पहले DULLM का पेपर बड़ा सॉर्टेड आता था जस्ट लाइक LLB, और खैर चलिए छोड़िए, पुराने दिनों की क्या ही बात करेंगे, वो दौर गुजर गया. तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको इस पेपर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करनी चाहिए. कि अच्छा सब कुछ आपने प्री के लेवल से करना है. प्री मतलब जुडिशरी प्री मेरे जुबान पे हमेशा रहता है, क्योंकि नाउ प्राइमरली वी आर अ जुडिशियल सर्विसेज कोचिंग अकेडमी. तो प्री के हिसाब से, इन द सेंस MCQs के हिसाब से आपने काम करना है. सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन करनी है. तो इसका जो जो तोड़ है वो है DULLM के पास्ट ईयर पेपर्स, ILI के पास्ट ईयर पेपर्स, और AILET के पास्ट ईयर पेपर्स, क्लैट PG के भी पास्ट ईयर्स के अंदर से 2019 तक के पेपर्स जो हैं वो आपके पास काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं. तो जो भी मार्केट में किताब है ऑफ पास्ट ईयर LLM पेपर्स, डू रेफर टू दैट फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज वेल देर इज नो बेटर प्रैक्टिस देन दिस. हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि मैं एक क्वेश्चन बैंक लीगल वगैरह, क्योंकि इसमें मॉक्स में एग्जैक्ट 75 क्वेश्चन के मॉक्स, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग देम. आई कैन जस्ट गिव अ क्वेश्चन बैंक, क्योंकि यू डोंट रियली नीड मॉक्स फॉर दिस एज सच. बिकॉज है क्या कि 75 क्वेश्चन ये लॉ के पूछेगा, और उसमें से आते हैं या नहीं आते. You can't really time it. There is no logical का section. There is no mathematics का section. It is just straight. Either you know it or either you don't know it, and you can use always process of elimination. Khair, any which way. We'll first stick to this Constitution. Then I will go for IPR. Always remember, LLM loves IPR. So all of your copyright, all of your trademarks, etc., they are all covered basically under IPR. LLM papers are in absolute love with IPR almost every year. अब आप कहेंगे वो नए वाले लॉज पढ़ने, नहीं अभी नहीं, आपने नहीं पढ़ने, इतने शॉर्ट नोटिस पे उतनी टेस्टिंग नहीं होगी. बट ऑफ कोर्स यू विल नीड टू रिमेंबर देयर नेम्स. जो नए वाले जो आए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय आपके न्याय संहिता, राइट. तो साक्ष्य अधिनियम, एक्ट इज एन अधिनियम, राइट. तो then I will obviously go to IPC, then I will couple that out with CRPC. Again, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इस पेपर का और कोई इलाज नहीं है. ऑलराइट, देन ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर CPC प्री लेवल एंड आई विल गो फॉर एविडेंस एक्ट. अब ये थोड़ी सी कठिन कार्य हैं, तो अगर मुझे इनको बाईपास, देखिए IPC तो मुझे करनी तो अगर मुझे इनको बाईपास भी करना है थोड़ा सा, कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए दैट यू नो आई जस्ट नॉट वांट टू टच देम, then I can perhaps replace them with a very strong understanding of ICA and TOTS. Alright. Now these are again, आप तो कहेंगे ये तो यार वही कोर सिलेबस है. हाँ जी, कोर ही करके जाइए, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता. And plus LLM is always big on jurisprudence. Analyze both of the, I'll be sending
COQB 14 तो एक मेरे पास पेपर है, उसके पुराने वाला भी अगर मुझे मिल गया, क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर कोड अलग होता था इसका. It used to be PGQB 02, I believe, right? So PGQB 0, I don't remember it correctly, but पहले पेपर कोड्स होते थे, they used to be starting with PGQPs, alright? तो COQP 14 जो है यहाँ पर, ये इसमें jurisprudence का बहुत बहुत बड़ा रोल है. But of course, two more areas I need to cover, that is international law and then there is environmental law. Now LLM is big on these two subjects. These two subjects you cannot skip out. Alright. तो अगर आप कहेंगे जी ये तैयारी में कितने टाइम लगेगा, क्योंकि ये पेपर तो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर है. देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता आपको, इट विल बी इंसेनली इनकरेक्ट फॉर मी टू टेल यू कि ये पेपर का सिलेबस बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके सिर्फ एक ही काम है, दैट यू गो थ्रू पास्ट ईयर्स ऑफ DU, ILI, AILET एंड ईश्वर को प्रार्थना लगाएं कि जो आपने पढ़ा है वो आ जाए पेपर में. That's just about it. If I were to prepare, I will specifically follow this order. I'll first complete Constitution, I'll complete IPR, I will jump on to IPC, CRPC. I'll try CPC, but CPC is insanely voluminous as you know. But I'll couple it out with Indian Evidence Act. इसके अंदर कोई सारे के सारे सेक्शन नहीं करने. But however, like for example, 165 of IEA is always tested, and आपके Order 7, Rule 11 in CPC. These are like short topics, and short topic इसलिए होते हैं because if you go through past years and you do your analysis, you will find कि यार ये बार बार यही पूछ रहा है. Classic case laws की सारी लिस्ट करनी पड़ेगी. और एक और टॉपिक जो आपको बचा सकता है, दैट इज LCA. व्हाट इज LCA? दैट इज लीगल करंट अफेयर्स. तो लाइक फॉर एग्जांपल, I'll post a photograph of that video here while editing this video. तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स फ्रॉम द लास्ट ईयर. एक चीज आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है. एक मैंने DJSE प्रीलिम्स का एक सेशन कराया था, उसमें 3.5 घंटे का सेशन है, वो यूट्यूब पे है. I'll post the link. I will leave the link to the Telegram channel जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा पिछले साल का, and other stuff as well. If I find the previous year PGQB 02 वगैरह वाला अगर मुझे पेपर मिल गया, I'll send that as well so that you get a fair understanding of basically ये आपका of the exam. ये ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरी रिविजन कराई थी ऑफ दिस ईयर. लीगल स्टैटिक GK, जजमेंट्स, लीगल करंट अफेयर्स तो आपके एक सेशन से ख़त्म हो जाएंगे. एंड इट इज़ देयर फॉर फ्री on the channel. You can watch that out. It will be of immense help to you. Believe you me, अगर आप उसमें से नोट्स एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, I believe this entire section will be covered. So whatever I teach usually for prelims in these master sessions that I usually take before each and every judicial services exam, well, it is covered there. आपको मिल जाएगा. मैं लिंक पिंड कमेंट में डाल दूँगा. तो ये तैयारी है जी. बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि DU LLM तो जून में होगा. तो आप क्या करेंगे? अभी आप कहेंगे अरे मेरा तो अभी 6 सेमेस्टर भी नहीं हुआ एंड आई एम टेकिंग जस्ट एज अ बैकअप. आई जस्ट वांट अ बैकअप सीट. So you'll be taking the exam in March. That will give you a score, and somewhere in the June-July time frame, because I don't see your 6th semester and faculty of law getting free before that, then DU will open a CSAS PG portal in which this score you will submit, and based on that they will issue you one list whether you have made it or not. So the exam full control is with NTA. पहले क्या होता था, DU used to design the exam and that score would have only been used for DU only. But now जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में LLM होगी, वो लोग सारे के सारे स्कोर एक्सेप्ट करेंगे. तो फिर BHU अगर इन्होंने ऑप्ट इन करा, CVT में इस टाइम पे मिसिंग है, वो लोग अपना पोर्टल खोलेंगे, उसके अंदर आप स्कोर सबमिट कर दीजिएगा. या कोई भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, you can submit your score and secure a seat. NLU Delhi के लिए of course you have the AILET PG जो कि दिसंबर में हो चुका है, CLAT PG भी हो चुका है, and yeah, that's just about it. This is just about it for the purposes of the exam, and hopefully it is clear as to what do you do. So this is the basic stuff that I would have if I had 2 months. I would prepare these subjects really well and then pray
to God that the question paper doesn't go left, right, center too much. Because अगर वो syllabus करने जाएंगे वो तो उन्होंने सभी कुछ उठा के दे दिया है. मतलब the entire 5 year, sorry 3 year LLB syllabus is there, including the optionals. तो क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए तो ये कर लें, right? And cover, take your notes out from that DJSE का lecture. I believe that you will be able to give a fair shot and give a fair attempt for this examination. Anything else that you need, you leave me a comment. If need be, I will reply there. If need be, I will craft out a very short lecture for that. Notes please इसमें से cover out कर लीजिएगा. Should be very beneficial. Go through the channels playlists for each and every subject, because that contains a lot many lectures that are provided for our online batches. तो उसके लिए आपको वहाँ से काफ़ी काफ़ी मदद मिल जाएगी. LLM के लिए भी काफ़ी lectures हैं. I used to teach for these exams, but now I'm solely judiciary focused, so I usually do not offer those courses anymore. So yeah, this is about it. You guys want to take a fair shot at it. You will be needing to attempt this. You will want to attempt this in March, and do not get confused that DULLM is bye bye now. That paper doesn't exist anymore. And anything else that you want to ask me, you can go ahead. You can leave a comment or take the question paper from the Telegram channel. I'll just, once this video goes live, I will instantly send that link instead of Google Drive वाला link. Usually YouTube comments में then Google tries to block it out क्योंकि वहाँ से download ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं. So Telegram पे मैं भेज देता हूँ आपको. And that's about it. Wishing you all the very best for this exam. If you wish to prepare for it, well then do so seriously, because time नहीं है. इस एग्ज़ाम के लिए मैं कह सकता हूँ कि टाइम नहीं है. And you are well short on time if you just want to prepare from scratch. The only way is वो जाना अपनी फैकल्टी ऑफ लॉ वगैरह से हैं, दिल्ली से हैं, दिनकर वाले के पास चले जाना. पास्ट ईयर्स उसके पास पढ़े होते हैं LLM के. पास्ट ईयर्स के बिना ये पेपर नहीं निकाल पाएंगे. मतलब देर इज़ जस्ट नो वे आउट. क्योंकि अगर आप सिलेबस थ्योरेटिकली पढ़ने बैठेंगे तो साल डेढ़ निकल जाएगा. तो इसकी बजाय फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. लाइक फॉर एग्जांपल कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह के टेन्योर्स पूछता ही पूछता है विदाउट एनी फेल. मॉरल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. तो वो आपको पास्ट ईयर में से एक समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बार बार ये पूछे जा रहा है. कोई बात नहीं. द मोर क्वेश्चंस दैट यू प्रैक्टिस, the better it is, and I'm sure that you'll be able to secure a seat. Wishing you all the very best for the exam, and I see you in for the lectures. Do explore the playlists. They are of immense help. सारे केस लॉज रिवाइज हो जाएंगे, सारे के सारे प्री के जहाँ पे भी आपको लेक्चर मिल गए वहाँ पे. That's immense stuff is there on the channel. It's just people don't watch it enough. But any which way, I leave it to people's fate. And I wish you all the very best. Take care. Bye.